Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Swedeep Academy. As I mentioned earlier, आज हम एक न्यू टॉपिक उपरे डिस्कस करने को जाऊचे and that is how to write social science descriptive answers in CBSE Board Exam. Descriptive रे हमर two type of question आसे 3 mark and another one is the 5 mark. So we'll discuss how to write those answers in CBSE Board Exam. One of the biggest doubts students have is how should I write my answers to score more marks? And in this video we'll learn how to write structure, clear and high scoring answers that examiners love. Okay, time management is very important, vocabulary is very important. Okay, format, that is structure answer, clear answer. Okay, so high scoring tips, everything we'll discuss in this chapter. But before that, let's see one of the we can say a very interesting quote, that is marks are not just about what you know, it's how you show. आरो अर्थ कौन, what it means students कि जेते बेले इवैल्यूएटर तुमरो कॉपी चेक करे आफ्टर बोर्ड, द इवैल्यूएटर डजंट नो यू पर्सनली. ओके, से तुमको जानी न थाए whether you are a brilliant student or average student. So your answer sheet is the only, or we can say your presentation is the only medium, your answer sheet is the only medium through which you can impress the evaluator. So tomorrow lekhibar presentation, okay, presentation style, or we can say format, okay, tome kete organizedly answer ti lekhicho, okay, then tomorrow handwriting is सबू पे डिपेंड करे जे इवैल्यूएटर तुमको केमती जज करिवो. सो आंसर शीट रे तुमे जेमिते लिखुछ ता ऊपर डिपेंड करे तुम मार्क्स. ओके, प्रेजेंटेशन मैटर्स ए लॉट. सो तो सब स्टूडेंट्स मान को एति बुझवा दरकार जे इनफॉरमेशन व्हाट यू नो ये तो मैटर करे, बट विथ दैट presentation be equally important, how you are presenting your answer. So मु कहिबी सबले माइंड रे या रखी चलिबा दरकार, impress the evaluator with your answer sheet, that is the key to getting high marks in CBSE board exam. Okay, so always try to impress the evaluator. So आमे केमती बेटर आंसर लिखि परिबा, आमे केमती इवैल्यूएटर को इंप्रेस करि परिबा. golden rule is, as you can see, that is ideal. Con na to make your answer ideal, it must be follow an ideal structure. तमरा आंसर टी आइडियल हवा पई हेले तम गुडे आइडियल स्ट्रक्चर भी फॉलो करिवार अछि. ओके, एंड ए आइडियल रो जदि हम फुल फॉर्म देखिबा, आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन, डी स्टैंड्स फॉर डिटेल, एग्जांपल, एनालिसिस एंड एट लास्ट लिंक और कंक्लूजन. सो ब्रॉडली आम आपको 3 पार्ट डिवाइड कर परिया. 1 पार्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट इज योर बॉडी एंड थर्ड पार्ट इज योर कंक्लूजन. ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कौन ना, यू हैव टू ब्रीफली एक्सप्लेन द टॉपिक. ओके, यू नीड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड आफ्टर दैट तुमको कौन करिवार अछि ना बॉडी ऊपर डिपेंड करे जे तमे बॉडी रे तुमको एलाबोरेट करिवार अछि जे मु कौन एक्सप्लेन करी, क्वेश्चन रे कौन पचरा जाइछि. बट बिफोर यू जंप इनटू द आंसर, फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ओके, कौन पचरा जाइछि, कौन कह जाइछि, एनालाइज, हां, और एक्सप्लेन और एनुमरेट और एलाबोरेट, राइट ए शॉर्ट नोट. ओके, देन डिफरेंशिएट कौन पचरा जाइछि. ओके, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट तमरो बॉडी मैटर करे जे तमे कौन डिटेल्स दब, को एग्जांपल माध्यम रे तमे एक्सप्लेन करिवो. ओके, शॉर्ट नोट रे कौन सब इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दब. ओके, एनालाइज रे तमे केमिति एनालिसिस करिवो, एक्सप्लेन केमिति करिवो. ओके, सो बॉडी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन ऊपर बॉडी डिपेंड करे एंड एट लास्ट यू नीड टू समराइज द होल आंसर, जाको हमें रखिछे लिंक और द कंक्लूजन. सो let's start with, that is introduction. Okay, how can we introduce a topic or how can we introduce a answer?
there are variety of methods. You can use quote, you can use question, you can use definition, just like that fact or data start, historical background also you can give, and compare and contrast is also a very good method. Generally what we are doing, we are using question method. कौन करछे ना, you know जदि question आसे simple question जेमति कि हमरा आसे, that is why is the issue of what are the features of federalism, explain. Okay, a question रे what are the features of federalism, direct question, features of federalism पचरा जाइछे, तमे लिखुछो the main features of federalism are blah blah blah. So this is the common method, but students remember प्राय तो पिला ए सेम मेथड ही फॉलो करंती. ओके, एंड इफ यू राइट ऑल द आंसर्स इन द सेम मैनर इन दिस वे, क्वेश्चन रु ही तमे पॉइंट काढी जदी लिखिबो, देन योर आंसर शीट विल लुक मोनोटोनस एंड दैट्स नॉट गुड. ओके, आंसर शीट देखले सेति की डायनामिक फील होबनी, एंड दैट्स व्हाई यू शुड यूज वेराइटी ऑफ मेथड्स. ओके, वेराइटी ऑफ इंट्रो टू इंट्रोड्यूस योर चैप्टर. सो फर्स्ट आई विल से दैट इज कोट. कोट बहुत बढ़िया. ओके, इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 10 रे एक्सरसाइज रे बहुत बढ़िया क्वेश्चन अछि, दैट इज द अर्थ हैज एनफ रिसोर्सेस टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट एनफ टू सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन. हाउ इज द स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट? क्वेश्चन आछि डिस्कस. ओके, कह जाउछि डिस्कस करो. तो मु ए क्वेश्चन रे मु इंट्रोडक्शन देबी. यू नो दैट महात्मा गांधी सेम कांसेप्ट ऊपर गोटे स्टेटमेंट देइछन्ती. Okay, that is there is enough for everybody's need but not for anybody's greed. मैं एक quote to start करी परिबी आंसर टी. Are you getting my point? And question method तो this is the first method, that is through question. Second, sorry, that is through quote. Second, that is through question. Okay, and a method, second method को प्रायतः पिला सब आंसर रे लिखन दियो. Okay, 5 मार्क तुम्हें पाइबो 4टा and 3 मार्क आई थिंक 5टा आसीबो. पाखापाखि 9टा का क्वेश्चन जदि तुम सेम मेथड ही यूज करिवो, योर आंसर शीट कंप्लीटली मोनोटोनस फील हो. ओके, दैट्स अ वेराइटी ऑफ मेथड यूज करो. एंड थर्ड वन इज द डेफिनेशन. ओके, जदि क्वेश्चन आसे व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, सो in such question you can start with na definition. Write the definition of sustainable development and through that enter into that topic. Okay, you through the definition also you can start a answer. Then next one is the fact or data start. Okay, fact and data start खास करी जो short note वाला question. Okay, write a short note. Soils कही परिबा. Okay, then we can say measure crops. A type of question रे आमे यूज करि परिबा फैक्ट और डाटा स्टार्ट. ओके, जदि क्वेश्चन आसे डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया, आल्सो मेंशन द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल. ए टाइप ऑफ क्वेश्चन रे फैक्ट स्टार्ट करो. ओके, द फैक्ट यू नो दैट ब्लैक सॉइल आल्सो कॉल्ड रेगुड सॉइल कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड इज आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन. तो ये गोटे शॉर्ट इंट्रोडक्शन दियो, एंड फ्रॉम दैट or through this you introduce the topic and write characteristics, formation, different heading रे लिखिबो. बॉडी पार्ट रे मु कहबी केमते different headings सब heading रहिबा दरकार. सो डाटा और फैक्ट स्टार्ट भी ये भी गोटे मेथड हे पारे. दिस इज द फोर्थ मेथड. ओके, नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत हेल्प करे पॉलिटिक्स, सिविक्स एंड हिस्ट्री. ओके, सो सपोज क्वेश्चन आछे explain Greek War of Independence. Okay, explain Greek War of Independence. ए क्वेश्चन तुम कौन कर पारिबो? यू नो दैट ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जस्ट पूर्वरु कौन हेतला? ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस पूर्वरु आमे जानथिले जुलाई रिवोल्यूशन 1830 फ्रांस रे हेतला. एंड यू नो दैट आप रे कमेंट करथिले कि दैट इज आई थिंक ड्यूक मैट्रिन्स आप रे कमेंट करथिले व्हेन फ्रांस निजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. सी बोली कही कौन ना जो फ्रांस रे माने क्या माने छिंक हो जाए पूरा यूरोप रे ठंडा लगे माने ठंडा धरती ये से कहीं कहीं ना जदि यूरोप रे जदि आम देखुचे कौन भी आइडिया स्प्रेड होची से कौटू स्प्रेड होची ना से स्प्रेड टी स्टार्ट होची कौटू ना फ्रांस रे जदि किसी भी घटे से सांगे सांगे पूरा यूरोप रे स्प्रेड हो जाए. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द जुलाई 1830 फ्रांस रे जो रिवोल्यूशन होता ता परे परे सडनली गोटे नेशनलिस्ट अपराइजिंग स्पार्क ऑफ होता कौटी ना ग्रीक रे. एंड फाइनाली ग्रीक गोटे इंडिपेंडेंट नेशन भाव कौन हो पार्ला ना एस्टाब्लीश हो पार्ला. सो ये हूँ मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यूज कली टू इंट्रोड्यूस ए चैप्टर. ओके, सॉरी इंट्रोड्यूस ए टॉपिक. द नेक्स्ट वन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट. ए मेथड दैट इज द सिक्स्थ मेथड. ओके, दिस इज 5 6 मेथड. एथिरे आमे देखिबा
खास करी जिते कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आसे ओके डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को बेसिस रे ए कैटेगराइज करा जायछि ना यू नो दैट फेडरेशन कैन बी फॉर्म इन ए टू वे दैट इज कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर तो मु टिके कंपेयर कली जे आमे केमिति बोथ फेडरेशन को आमे कोन करछे ना फॉर्मेशन करछे ओके तो बोथ एम टू शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दे डिफर इन ओरिजिन पर्पस एंड स्ट्रक्चर मुटिके कंपेयर कली बोथ को कंट्रास्ट कली एंड किछि किछि इन्फॉर्मेशन सहित मु कोन कली ना क्वेश्चन टी को कोन कली डिकोड कली हम कहि परिबी आंसर टी को मु कोन कली ना इंट्रोड्यूस कली तो ये गला अनदर मेथड सो एभली मेनी अदर्स आर देयर आ व्यतीत भी बहुत अदर अच्छी बट एटलिस्ट मु कहबी यू शुड यूज कोट ओके जेतेबेले कोनोसी न्यूज पढुचो बा कोनोसी इंटरनेट रे कोनोसी सोर्स रे किछि भी देखुचो दे कोट पाउचो एंड तुमको लागुची जे कोट टी मु कोनोसी उडा आंसर रे लिखि परिबी देन सेवली कोट को कलेक्ट करो ओके क्वेश्चन मेथड रे क्वेश्चन रो ही पॉइंट बाहर करी आंसर को कौन कर इंट्रोड्यूस कर यू कैन यूज डेफिनेशन फैक्ट और डाटा स्टार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट तो ये तुमको कौन कर अच्छी ना गोटे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर ब्रीफली एक्सप्लेन कर तुम क्वेश्चन को ओके तो ये इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करे इवैल्यूएटर को अट्रैक्ट करिबारे गोटे इंप्रेशन जमेबारे ओके देन नेक्स्ट इज हाउ टू राइट द बॉडी ओके नेक्स्ट आम डिस्कस करबा हम बॉडी को केमती लिखिबा ऑलवेज रिमेंबर जेतेबेले भी बॉडी लिखुच फास्ट थिंग यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई थिंक अराउंड 90% क्वेश्चन रे आमे हेडिंग सब हेडिंग फाइंड आउट करि परिबा आम लेवल में फाइंड आउट कर ये बहुत हेल्प करे कौन ना आम आंसर को डिफरेंट पार्ट डिवाइड कर दैट इज इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन ओके बट आंसर लिखला समय केबे लिखिबोनी इंट्रोडक्शन देन लिखिबो गोटे टॉपिक देन लिखिबो बॉडी देन आंसर एंड देन कंक्लूजन देन आंसर ये भली केबे भी करिवो नाही ओके केबे भी करिवो नहीं भली तुम देखि न्यूज आर्टिकल पढ़ो आर्टिकल रू पढ़ला बेलू को ही फील हो जे हाँ ए पैराग्राफ टी इंट्रो ये हूँ बॉडी येस इन बॉडी यू कैन यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग बट इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ये लिखिबो नाही तो हेडिंग एंड सब हेडिंग यूज करबा द्वारा हमें आंसर को इजीली ब्रेक करि परिबा आको हमें इजी टू रीड करि परिबा एंड ये कौन देखा जीवो ना ऑर्गेनाइज देखा जीवो बहुत ऑर्गेनाइज देखा जीवो दैट्स व्हाई ऑलवेज यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग ओके सेकंड बुलेट पॉइंट ऑलवेज राइट इन बुलेट पॉइंट लॉन्ग पैराग्राफ रे केबे भी एसएसटी रो आंसर लिखिबोनी ओके सबले मन रख बुलेट पॉइंट्स लिखिबो एंड रिमेंबर बुलेट पॉइंट केमती हेबा दरकार ना ये एग्जामिनर को हेल्प करिवो कोथिरे ना इजीली इंपोर्टेंट पॉइंट्स को फाइंड आउट करिवारे एग्जामिनर को हेल्प करिवो जदा हम बुलेट पॉइंट आंसर लिखिबा एंड ऑलवेज रिमेंबर ईच पॉइंट गोटे आइडिया ऊपर बेस हवा दरकार एंड जो आइडिया पय तमे 1 मार्क जनरली पाइबो सपोज क्वेश्चन आसी 5 मार्क यू हैव टू गिव 7 आइडियाज 7 पॉइंट देबार अछि एंड 7.7 आइडियाज ऊपर बेस थिबा दरकार ओके इजीली यू विल गेट 5 मार्क बट जब 5 मार्क गोटे क्वेश्चन आसी एंड तुम हार्डली 2 to 3 आइडियाज देइछो जस्ट खाली ताको लेंदी करके 8-10टा पॉइंट एलाबोरेट करछो यू विल नॉट गेट 5 मार्क फॉर दैट ओके जब 3 मार्क क्वेश्चन आसी देन गिव 4 to 5 आइडियाज 4 to 5 पॉइंट 4-5टा आइडियाज को टच करो तो ये बुलेट पॉइंट ईच बुलेट पॉइंट गोटे आइडिया ऊपर बेस हवा दरकार जहाँ तुम गोटे मार्क पाइबो ओके जब गोटे भी भूल हो जाए 7टार गोटे भी भूल हो जाए यू विल गेट 5 out of 5 then use always use diagrams and flow chart जेमते हमें जानचे that is central government state government and local government एठी हमें यूज करि परिबा pyramid यूज करि परिबा boxes यूज करि परिबा ओके प्रोसेस को शो करिया पे एभले हमें एरो मार्क यूज करि परिबा टाइमलाइंस हमें यूज करि परिबा ओके तो always use diagram and flow chart and the most important one subject specific vocabulary पिला कहते जे सर मनरू लिखले आंसर मिलिबो कि हाँ मनरू लिखले आंसर मिलिबो बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक vocabulary तो दियो बट तमे पूरा सिंप्लीफाइड वर्सन लिखिबो सेठे पॉलिटिक्स बा सिविक्स हिस्ट्री बा हमरो ज्योग्राफिकल टर्म ही नथिबो तो भल लगे आंसर दैट्स व्हाई पिला सब कह जाए सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकाबुलरी यूज कर एंड यूज वर्ड्स फ्रॉम एनसीईआरटी एनसीईआरटी वर्ड बहुत ही पावरफुल बहुत बढ़िया वर्डिंग अच्छी आम बुक रे तो ट्राए कर सब से एनसीईआरटी वर्ड बाध्यतामूलक नुह निजर बेस्ट ट्राए कर आम एनसीईआरटी वर्ड को ही एनसीईआरटी फ्रेजेस बा स्टेटमेंट को ही आम आंसर रे यूज कर परिबा ओके सो बोनस टिप देबी दैट इज बुलेट पॉइंट रे जदी लिखुचो मोर क्लैरिटी डायग्राम जदी करूचो देन चांसेस इज वेरी हाई विल गेट हाई मार्क एंड कीवर्ड
इंप्रेशन जमेबारे बहुत हेल्प कर जे तुम एनसीईआरटी रो वर्ड यूज करछो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हाई ग्रेविटी वर्ड जदि यूज करछो देन इंप्रेशन जमेबारे ये बहुत हेल्प करे. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू राइट द बॉडी इन द सोशल साइंस एग्जाम इन CBSE. ओके नेक्स्ट लास्ट वन इज द कंक्लूजन. इट इज वेरी इंपोर्टेंट. पिला माने कंक्लूजन कौन करंती ना इंट्रोडक्शन रे जहा लिखि दिबे सेम जिंस रिपीट करंती कोथिरे ना कंक्लूजन रे. ओके अवॉइड रिपीटिंग एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बॉडी. केबे भी इंट्रोडक्शन बा बॉडी रो सेंटेंसेस को रिपीट करनी कंक्लूजन रे केबे नेवर. ओके ये बहुत ही खराब. ओके तो कंक्लूजन काहे की इंपोर्टेंट ना इट लीव्स ए फाइनल इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. ओके एग्जामिनर्स जमती इंट्रोडक्शन थ्रू आम गोटे इंप्रेस क्रिएट करी थाओ तो फाइनाली माने एग्जामिनर को कंप्लीटली आम कौन ना ए कॉन्फिडेंट देवा जे हाँ आंसर टी बहुत बढ़िया लिखीचे. ए फाइनल इंप्रेशन जमेबारे बहुत हेल्प करे कि ना दैट इज कंक्लूजन. देन इट शोस यू क्लैरिटी ऑफ थॉट. तुम केते से कॉन्सेप्ट को नहीं कि तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी केते अच्छी तुम थॉट प्रोसेस केते क्लियर अच्छी रिगार्डिंग दैट कॉन्सेप्ट सी शो हुए जे तुम केमिति चैप्टर को इंट्रोड्यूस कल एंड चैप्टर सॉरी नॉट चैप्टर सॉरी केमिति तुम गोटे आंसर को इंट्रोड्यूस कल एंड तुम केमते से आंसर को कंक्लूड कल. ओके ये जना पड़े तुम कंटेंट क्लैरिटी. देन ये हेल्प्स करे रैप अप करिवारे. ऑलवेज जदि कोनोसी पॉइंट टू स्टार्ट करछो तार गोटे एंड हवा दरकार. ओके बेले बेले पिला कोन करंते ना मन इच्छा पॉइंट्स लिखिथिबे. ओके टोटली ऑर्गेनाइज नथिबो. लास्ट गोटे पॉइंट फास्ट लिखि दिथिबे फास्ट गोटे पॉइंट पछु पळा आस्थिबो. ओके सीक्वेंस नथिबो कोहेरेंट फील हो नथिबो. ओके गोटे कंटिन्यूटी नथिबो तो सी भल लागेनी. तो गोटे लॉजिकल फील हवा दरकार पॉइंट गुडी ऑर्गेनाइज फील हवा दरकार नीट लिखिथिबा दरकार एंड फाइनली से प्रॉपर्ली रैप अप भी हवा दरकार. एंड से रैप अप फील हबो कोठू ना कंक्लूजन तुम केमती प्रेजेंट करछो. ओके दैट्स ए कंक्लूजन इंपोर्टेंट. एंड तुम कंक्लूजन को लेखि पारिबो केमती केमती तुम कंक्लूजन तुम दबो किछि आइडिया तुम समराइज करि पारो 1 to 2 लाइन रे. ओके वी विल सी सम एग्जांपल्स. देन आसीगला तुम फ्रेजेस लाइक जमती इन कंक्लूजन वी कैन do it or blah 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 will use kari para. Thus we can say मोटे example देबी. suppose गोटे question आछि do you think power sharing is desirable? Support your answer with expert opinions or example. Okay question होचे do you think power sharing is desirable? सब लेखिलो justify कलो analyze कलो example देलो details देलो everything तमे कलो and finally तमे conclude एभली देई परिबो. Thus we can say power sharing is desirable. Hence it can be inferred that कि power sharing is desirable. तो एभली wording बा एभली phrases रो तमे यूज करि परिबो कोठे ना कंक्लूजन रे सो दैट रैप अप कला भली फील हबो क्लैरिटी थिला भली तमरो कांसेप्ट क्लैरिटी थिला भली फील हबो. अदरवाइज ऑर्गेनाइजली जदि न लिखिथिबो टोटली ही जिंस फील हबो नाही. एंड फाइनली कनेक्ट द कंक्लूजन विथ द मेन क्वेश्चन. इट इज अ वेरी गुड वे टू कंक्लूड ए टॉपिक. ओके कनेक्ट द कंक्लूजन विथ द मेन क्वेश्चन. तुम इंट्रो को नहीं कंक्लूजन लिखिबो बॉडी रे जहा लिखिछो ताकू नहीं तुम कंक्लूजन लिखिबो. ओके तो ये गोटे बहुत बढ़िया मेथड मु देखेबी आगु गोटे एग्जाम्पल नहीं तुमको बुझेबी जे आमे केमती बॉडी को कनेक्ट करके आमे गोटे कंक्लूजन लिखिबा. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ना लिंक और कंक्लूजन. ओके आई थिंक बुझी पारलो जे आमे इंट्रोड्यूस करबा केमती ना डिफरेंट मेथड अछि. ओके ये सब को नोट कर दियो एंड ऑलवेज ट्राई करो. मु पिलांग सब बेले रिक्वेस्ट करे ये मैथ नो जे आमे बारंबार आमे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करबा बट एटलीस्ट बिफोर द एग्जाम. ओके सब क्वेश्चन भी दरकार नहीं आमे सॉइल और वी कैन से डिफरेंट क्रॉप्स एभली क्वेश्चन नो डायरेक्ट क्वेश्चन नो बट किछि किछि क्वेश्चंस अछि सोशल साइंस रे जो क्वेश्चन को आमे गोटे स्ट्रक्चर वे रे आंसर लिखिबा दरकार. एटलीस्ट से क्वेश्चन गुडी को बिफोर द एग्जाम थरे लेख थरे ट्राई करो जे ता पई कोन क्वेश्चन देबी ता पई कोन कोटेशन देबी. ओके ता पई कोन डेफिनेशन देबी केमिते गोटे मु फैक्ट स्टार्ट करि परबी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ए क्वेश्चन पई देले कोन भल लागिवो. तो गोटे प्रॉपर प्लान करबा दरकार बिफोर एग्जाम. थरे राइट थ्रू राइटिंग आपको प्रैक्टिस कर थ्रू राइटिंग थरे देख जे एमती आंसर टी लिखले कौन लाଗୁଛି तो तुम ये सब आइडियाज यूज कर पारिबो. सेकंड आसला बॉडी को कोहली लिखिबो आइडियाज आसला. ओके ऑलवेज राइट इन बुलेट पॉइंट. ओके हेडिंग सब हेडिंग निहाती रहबा दरकार. डायग्राम फ्लो चार्ट को यूज करो. ओके तुमर यूट्यूब चैनल रे ज्योग्राफी रो वीडियोस देखो हिस्ट्री रो वीडियोस देखो मु बहुत डायग्राम एंड फ्लो चार्ट यूज करछि. ओके से सब को तुम यूज कर पारिबो कोठी ना आंसर राइटिंग रे. ओके बडा आइडियाज आसीबो जे हमें डिफरेंट टॉपिक को थ्रू डायग्राम एंड फ्लो चार्ट हमें केमते एक्सप्लेन करिबा. सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकाबुलरी को यूज करा. एंड लास्ट वन इज द कंक्लूजन. ओके एंड कंक्लूजन विषय भी हमें डिस्कस कले. तो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ए ऊपर ही तमरो डिस्क्रिप्टिव
क्वेश्चंस रा आंसर बेस रहिबा दरकार. नाउ लेट्स सी ए एग्जांपल. ओके सपोज मु क्वेश्चन नै दैट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ गिउसेपी माजिनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली. इटाली यूनिफिकेशन रे गिउसेपी माजिनी कर रोल कोन थिला. ओके केते मार्क अछि ना 3 मार्क अछि. 3 मार्क तार सय मु तीनटा मेजर पॉइंट्स नै छि. ओके आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस देखो सब हेडिंग देछि रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट कोड सब हेडिंग देछि एंड देन देछि फाउंडर ऑफ यंग इटाली मूवमेंट. ओके 3 मार्क अच्छी 3टा मेजर पॉइंट 3टा मेजर आइडिया ऊपर बेस करछि. देन गोटे मोर इंट्रोडक्शन अच्छी एंड कंक्लूजन अच्छी. इंट्रोडक्शन कौन देछि ना गिउसेपी माजिनी जो रिलेंटलेस एफर्ट ऊपर अगेन ड्यूक मार्टिन्स गोटे मत देते गोटे स्टेटमेंट देते दैट इज द मोस्ट डेंजरस मैन फॉर आवर सोशल ऑर्डर. तो से स्टेटमेंट को यूज करछि एज ए कोट टू इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन. मु लिखिछि कॉल द मोस्ट डेंजरस मैन फॉर आवर सोशल ऑर्डर बाय ड्यूक मार्टिन्स माजिनी इग्नाइटेड रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म अक्रॉस इटाली. तो मैं ये यूज कली गोटे कोट. देन टॉपिक लिखिली. टॉपिक देख मोर बुलेट पॉइंट रे अछि. ओके देन मोर साइड हेडिंग अछि. देन तुम ये देखि पारथुबो जो मोर वार्डिंग अछि. ओके फाउंडर ऑफ यंग इटाली मूवमेंट बा हमर जो डिफरेंट रिपब्लिकन गवर्नमेंट. ओके यूनाइटेड इटाली डेमोक्रेटिक. ओके बा एभली वर्ड्स गुड़िक तुम देखुव सीक्रेट सोसाइटीज. ओके नेशनलिस्ट आइडिया ए वर्ड गुड़िक संपूर्ण ओके कहा पर डिपेंड करे दैट इज मोर सब्जेक्ट रिलेटेड बा मु जो जिनसटी कहली दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकाबुलारी भी मुझे यूज करी. ओके तो मु कौन कली हेडिंग देली सब हेडिंग देली बुलेट पॉइंट देली डायग्राम फ्लो चार्ट कहबी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकाबुलारी भी यूज करागला. एंड ईच आइडियाज पाई ईच बुलेट पॉइंट पाई मते मार्क भी मिल जिवो आराम रे मुझे 3 आउट ऑफ 3 पाइबी. ओके एंड मु कंक्लूजन कौन देली देखो मुझे कंक्लूजन कौन देछि ना मु मेन क्वेश्चन सहित मेन आइडिया सहित मु कंक्लूजन को कनेक्ट करछि. केमती ना दो मैजिनी फेल टू अचीव इमीडिएट पॉलिटिकल सक्सेस हिज आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी. एटा मैं आइडियोलॉजी विषय में तांकर कहितली. तो His ideals of democracy, liberty and nationalism laid the foundation of Italy unification. से बहुत चेष्टा करथिले. से बहुत किछि मोमेंट को ऑर्गेनाइज करछन्दी. तांकर आइडियोलॉजी बहुत आइडियोलॉजी द्वारा बहुत जन से इन्फ्लुएंस करछन्दी. ओके से जन रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थिले जहा भी किछि. ओके ए सब को मु कनेक्ट करी जे ना ए सब सत्य भी माजिनी फेल हेथिले किंतु गोटे फाउंडेशन इटाली यूनिफिकेशन पे गोटे फाउंडेशन डेवलप करिवारे से सक्सेस हेथिले. तो बॉडी को कनेक्ट करी मु ए कंक्लूजन टी देछि. तो ए भली इंट्रोडक्शन देन आसीगला बॉडी देन आसीगला कंक्लूजन. मैं मेंशन करछि कि इंट्रोडक्शन बोली मुझे मेंशन करछि कि बॉडी बोली नो एटा मेंशन करछि कंक्लूजन बोली ना ए भली मेंशन करिवो नाही. आंसर डायरेक्ट एभली लिखा दरकार. ओके एंड जदि ए क्वेश्चन ही 3 मार्क जगह जदि 5 मार्क आसे देन मु निहाती कहबी तुम ऐड कर कोन ना दैट इज डायग्राम एंड फ्लो चार्ट एज यू कैन सी हियर. ओके 1831 रे यंग इटाली फॉर्म करथिले कोन पाई ना टू स्प्रेड रिपब्लिकन आइडियल्स एंड रिपब्लिकन आइडियाज जतबे माजिनी स्प्रेड कला द्वारा यूथ माने बहुत इंस्पायर्ड हेतिले लीडर्स माने बहुत इंस्पायर्ड हेतिले जहा द्वारा गोटे आइडियोलॉजिकल बेस बनिथिला इटाली यूनिफिकेशन पे. ओके जदि एभली लेखुजो ना आई एम 100% श्योर यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 बहुत बढ़िया मार्क आसीबो. ओके एभली फ्लो चार्ट निहाती तम आंसर शीट रे रहिबा दरकार. ओके मु पिला सब कहे जदि सपोज 5 मार्क 4टी आसी टोटाल 20 मार्क. ओके सब जगह आंसर जदि तुम एभली लिखिछ सपोज ए भितर कौन से गोटे क्वेश्चन तुम एते प्रॉपर्ली लिखि पारन जदि तुम प्रेजेंटेशन एते बढ़िया थिवो ना सब जगह आंसर तुम एते बढ़िया लिखथिवो ना. सपोज गोटे क्वेश्चन रे तुम 3 to 4 डिजर्व करथले भी तुम एते बढ़िया इंप्रेशन जमे देथिवो तुम सेटे पाइ जिवो 5 आउट ऑफ 5. ओके फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बहुत वर्क करे. ओके बहुत वर्क करे. सो आई होप कि तुम्हें मोर सजेसन उपरे कौन कर ना वर्क कर थे चेष्टा करी देख मु 100% श्योर दे कहबी कि बहुत बढ़िया मार्क आसीबो CBSE फाइनल बोर्ड एग्जाम रे. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप कि तुमको ये वीडियोटी हेल्पफुल होइथिबो क्लियर होइथिबो ए क्वेश्चन को लेकिन तुमर माने जो कन्फ्यूजन थिला गोटे क्लैरिटी आसथिबो. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स. पचार मते क्वेश्चन कमेंट्स रे आई विल रिप्लाई. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू Swedeep Academy. So see you in the next video with more such helpful lessons. So thank you very much for watching.